Hello student, today I will teach you the measurement of distances by indirect method. Already we have studied the direct method by the meter scale, vernier scale or aspirometer. But the long distances is measured by the indirect method. First, suppose that one is accessible height we have to measure such that the height of the tree or the tower. This method, suppose that this is a tower AB or the tree. The height of the tree or the tower is AB, B is the base. This is the C is the point of observation. The point of observation from the base is X, at distance X. The angle of elevation, suppose that theta. मान लिया जाए कि बेस से x दूरी पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, टॉप से जो हाइट है उसकी टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वह मान लीजिए थीटा है. तब ए बी इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, बी सी क्या हो गया, बेस. तब हम कर सकते हैं tan थीटा इजकल टू ए बी बाई बी सी बराबर h बाई एक्स. देन x इजकल h इजकल टू x tan थीटा. तब यहां पर हम एक x बेस से जो है ऑब्जर्वर की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जितनी एंगल बन रही है उस एंगल को मेजर कर लेंगे. तब इससे हमारा जो है हाइट ऑफ द accessible height of the tree or the tower can be calculated. Long distances, suppose that the distance of the moon or any other star we measured by a method called parallactic method. What is the parallax? First we know what is the parallax. Parallax. Very simple. This is a point. You observe from a distance. First, you close your one eye and see that point with other eye. Clear? And then close the other eye and see the same point with the first eye. You observe the point is shifted from its position. That point, first you close the one eye and see of the other eye that point, and again close the other eye and see the same point with the other eye. You observe the point is shifted from this position. This phenomenon is known as the parallax. That means the parallax is defined as the apparent shift of the body with respect to the another body with the shift of the eye. यानी आंखों के शिफ्ट करने से पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की पोजीशन है वह शिफ्ट करती है. इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं. और इसी मेथड के जरिए हम जो है डिस्टेंट स्टार की जो है हम मेजर करते हैं डिस्टेंस. सपोज दैट वी टेक, सपोज दैट दिस इज द अर्थ, दिस इज अर्थ. We take point, 2 points on the earth. Suppose that this is the A and this is B.
2 point. We have already know the parallax, the shift of the position between the 2i, the distance between 2i is known as the base. इसको हम बेस कहते हैं. तो हम जो है दो पोजीशन अर्थ पर लेते हैं ए और बी. हम एक ऐसे स्टार का, डिस्टेंट स्टार का कंसीडर करते हैं जिसकी पोजीशन एटलीस्ट डू नॉट चेंज फॉर द 6 मंथ. 6 महीने के लिए उसकी स्थिति बदलती रही. वी हैव टू मेजर, सपोज दैट दिस इज द डिस्टेंट स्टार एस and S dash. This is the position of the planet. Suppose that this is P. Observer come at the first point and observe the position of the planet with respect to that distant star. The angle formed on the eye of the observer, say that θ1. Again, the observer come at the point B. अब ऑब्जर्वर कहाँ आता है? पॉइंट बी पर, और वहां से इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करता है विथ रेस्पेक्ट टू द सेम पोजीशन ऑफ डिस्टेंट स्टार, सपोज दैट एस डैश, एंड द एंगल formed at the eye is the θ2. We, for the convenient, we drop a normal. ड्रॉप ए नॉर्मल. तब ज्योमेट्रिकल के हिसाब से ये क्या हो गया? एंगल θ1, और ये एंगल क्या हो गया? θ2. ठीक है. ए से बी की, क्योंकि ये शिफ्ट ऑफ द पोजीशन है किसका? ऑब्जर्वर का, तो ये डिस्टेंस मान लिया b. और ये जो है द डिस्टेंस इज सपोज दैट d. दिस इज द d. तो शिफ्ट ऑफ पोजीशन, तो बी, ये एंगल एस ए पी बराबर θ1, एंगल एस डैश बी P इक्वल टू θ2. तब एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ2. इसी को हम कहते हैं पैरालैक्टिक एंगल. इसे हम क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक एंगल. अब हम यदि इसे एक मान लें कि एक बहुत बड़ा, चूंकि इन कंपेरिजन to the distance of the star, the B is very very small comparison to the D, distance of the star or the planet. ये जो बेस है वह उसकी तुलना में पृथ्वी पर जो तुलना हम करें तो यह बहुत बहुत कम होता है. तो इसे हम एक बड़े सर्किल का एक छोटा सा आर्क मान सकते हैं. क्या मान सकते हैं? एक छोटा सा आर्क मान सकते हैं जिसकी रेडियस क्या है? D. तब हम जानते हैं थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस. तब θ1 प्लस θ2 बराबर आर्क कितना हो गया? b, और रेडियस कितना हो गया? d. तो d इक्वल टू b बाई θ1 प्लस θ2. θ1 प्लस θ2 के बदले हम थीटा केवल लिख दें, तब ये हो जाएगा, और d बराबर b बाई थीटा. इस तरीके से हम डिस्टेंसेज निकाल सकते हैं. इसी पैरालैक्टिक मेथड का उपयोग कर हम जो है डायमीटर ऑफ द मून का भी कैलकुलेशन करते हैं. देखिए कैसे करते हैं. ए बी इज द डायमीटर, पॉइंट ए एंड बी आर द diametrically opposite point, and E is the point on the surface of the earth. So angular diameter is the angular diameter of the moon is the angle subtended
बाई 2 points diametrically opposite, by 2 points diametrically opposite ends of the moon. क्लियर? फिर से समझिए. डायमेट्रिकल एंगुलर डायमीटर, ये है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर, ए बी को. एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज द एंगल सबटेंडेड by 2 diametrically opposite ends of the moon at the point of the earth. पृथ्वी के ऊपर कोई एक बिंदु है. मान लिया कि ये जो है क्या है, डिस्टेंस d, और ये भी जो है b है. ये ऑब्जर्वर की आंखों पर क्या बन रहा है, एंगल थीटा. ये सेम पोजीशन है जैसे कि पैरालैक्टिक मेथड में शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन. उसी मेथड से यदि हम ये मान लें कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, तब उस हिसाब से ये भी क्या होगा, एक छोटा सा आर्क मान लिया जाए. कंसीडर एज द स्मॉलर आर्क, है ना, ऑफ रेडियस डी. तब वैसी स्थिति में थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस. तब आर्क कितना हो गया, b, और ये क्या हो गया, d. तो थीटा बराबर b बाई डी, ये हमको मेजर करना है ना, डायमीटर. तो b इक्वल टू डी थीटा. इस तरह ए बी क्या हो गया, डायमीटर, और तब हम इसको मेजर कर लेते हैं. क्लियर? एक आता है डिस्टेंसेज मेजर करने के लिए. इंफीरियर प्लेनेट, अर्थ मूव अराउंड द सन. अब इसके अंदर में कोई इंफीरियर में सन और अर्थ के बीच में कोई प्लेनेट है, तो अर्थ से उस प्लेनेट की दूरी क्या है, कितनी है. हम इसे मेजर करने के लिए एक मेथड है जिसे कॉपरनिकस ने दिया था. जिसे दिया था कॉपरनिकस ने. इसे कॉपरनिकस मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, कॉपरनिकस मेथड. इसे हम कहते हैं कॉपरनिकस मेथड. कॉपरनिकस मेथड. कॉपरनिकस मेथड में हमें एक वर्ड जानना होता है, प्लैनेट्स इलोंगेशन. इसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट इलोंगेशन को हम एप्सिलॉन इस एंगल से डिनोट करते हैं. द एंगल सबटेंड एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ बिटवीन, द एंगल सबटेंड at the point of the earth between the earth sun direction and the earth planet direction. Earth planet sun direction and the earth planet direction, इन दोनों के बीच में जो अर्थ के ई पर, पॉइंट ई पर जो एंगल सबटेंड होता है, इसी को हम कहते हैं प्लैनेट इलोंगेशन. चूंकि दे आर इवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो प्लैनेट्स इलोंगेशन किस चेंजिंग, या हमेशा बदलते रहता है. एक स्थिति आती है जब यह जो है प्लैनेट इलोंगेशन ई का जो वैल्यू होता है वह मैक्सिमम होता है. जब मैक्सिमम होता है, इन दिस पोजीशन the direction of the planet Earth and the direction of the planet Sun, both के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है. The angle between the direction of the planet Sun and the direction of the planet Earth का बीच का एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है. यह आपका जो है अर्थ है जो आउटर पे है, और एक कोई प्लेनेट पी है जो इनर में है, इंफीरियर एरिया में है.
और यह सन है जिसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल या 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तब इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस। तो ऐसी REPS डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, REP डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लेनेट, RPS डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। तब यहां से हम निकाल सकते हैं साइन E इक्वल टू RPS बाई RES। RPS इक्वल टू साइन E इक्वल टू RPS बाई RES। तब RPS इक्वल टू RES इंटू साइन एप्सिलॉन। यह हो गया प्लेनेट और सन के बीच की दूरी। यदि हमें निकालना हो RES तब यह हो जाएगा RPS बटा साइन एप्सिलॉन। ये एक केस हुआ। लेकिन कॉस एप्सिलॉन इक्वल टू कॉस एप्सिलॉन, चूंकि एक ही और हमें ध्यान देने की जरूरत है, पृथ्वी और सन के बीच की जो दूरी है वह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। तो यहां से हम RPS इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी साइन एप्सिलॉन इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। तो इस एंगल की वैल्यू साइन में निकाल कर मल्टीप्लाई बाई इतना, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। क्लियर? इन द नेक्स्ट cos एप्सिलॉन, क्लियर, इक्वल टू बेस यानी RPE बटा RES, क्लियर। तब RPE इक्वल टू RES इंटू कॉस एप्सिलॉन। RES डिस्टेंस बिटवीन द सन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं RPE इक्वल टू कॉस एप्सिलॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और फिर हम जानते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496, तो RPE इक्वल टू कॉस एप्सिलॉन इंटू 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। और कॉस एप्सिलॉन एंगल का नेट्स इलोंगेशन का वैल्यू निकाल कर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड अर्थ कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सभी इनडायरेक्टेड मेथड हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेज। इसे कोपरनिकस मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है छोटी सी दूरी, छोटी छोटी डिस्टेंसेज। सपोज दैट द एटॉमिक रेडियस हमें मेजर करना हो, छोटा डिस्टेंस, यह इनडायरेक्ट मेथड में कैसे हम निकालते हैं। छोटी डिस्टेंस है जैसे कि एटॉमिक रेडियस मेजर करना हो तो इनडायरेक्ट मेथड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ध्यान से सुनिए, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
1 gram molecules of a substance is 2/3 of the volume of the 2/3 of the volume of 1 gram of substance। कैसे होता है? देखिए, एटम्स आर कंसिडर एस्फेरिकल इन शेप, तो ये एटम्स है जो एस्फेरिकल है। Suppose that these are the atom occupied some value. So this is not actual volume. This is the observed volume of the atoms. आप देख रहे हैं कि एटम्स आर एस्फेरिकल, तो इसके बीच में देखिए वॉइड है। देखिए एक और से इसमें वॉइड है। So these are not calculated in the volume of the atoms. ये वॉइड जो है मॉलिक्यूल्स की जो एटम्स के वॉइड बने हुए इस मॉलिक्यूल के अंदर इस वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यही है, तो यही हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि एक्चुअल वॉल्यूम जो एटम का है, एक्चुअल वॉल्यूम, वह जो है ऑब्जर्व वॉल्यूम का 2/3 होता है। यानी यह जो वॉइड का वॉल्यूम है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए ऑब्जर्व वॉल्यूम में से, तो हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकल जाता है। मान लिया कि कोई सब्सटेंस है जिसका मोलिक्यूलर मास क्या है, m है, मोलिक्यूलर मास है। तो यदि हम इसे ग्राम में व्यक्त कर दें तो m ग्राम विल कंटेन, इसमें कितने एटम हो सकते हैं, n क्या है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो m ग्राम n एटम कंसिस्ट करते हैं, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, n/m एटम्स, इतने एटम होंगे। यदि एक एटम की रेडियस r हो तो एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई r³। तो इतने एटम्स की वॉल्यूम कितनी हो गई, n/m इंटू 4/3 पाई r³। यह क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम। मान लिया कि v डैश इक्वल टू n/m इंटू 4/3 पाई r³। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार v डैश इक्वल टू 2/3 v, वेयर v इज द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। v क्या है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है। तो यदि हम इसकी वैल्यू रख दें तो n/m इंटू 4/3 पाई r³ बराबर 2/3। अब देखें तो 2 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इधर कैंसिल 2 होगा, तब क्या आएगा, n/m 2 पाई r³ इक्वल टू v। यानी हम कहें तो r³ इक्वल टू v/m/2 पाई n। क्लियर। तब r बराबर क्या होगा, r इक्वल टू v/m/2 पाई n का पावर 1/3। अब इस तरीके से हम रेडियस ऑफ द एटम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, डेंसिटी बराबर होती है मास बटा वॉल्यूम। हमने मास कितना लिया है, 1 ग्राम, वॉल्यूम v है तो 1/v। तब हम यहां पर v की जगह पे, तो v बराबर क्या होगा, 1/ρ। तो इस फॉर्मूला में v की जगह पे 1/ρ पुट करें तो r इक्वल टू m/2 पाई n रो का पावर 1/3। यदि
इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस। मास के बारे में आप जानते हैं, बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन यहां हम मास दो तरह से पढ़ते हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास of a body is that determine the inertia of a body in translational motion. In translational motion, the mass of a body, the mass of a body that determine the inertia in translational motion is called inertial mass. Is clear? Inertial mass is measured by the inertial balance। एक होता है inertial balance होता है, इसके जरिए हम इसका मास जो है ज्ञात करते हैं। और इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल टू MIA। F is the force in the Newton, MI the inertial mass, A is the acceleration। इस तरीके से हम जो है एनर्शियल मास काउंट करते हैं। दूसरा है ग्रेविटेशनल मास, द मास ऑफ द बॉडी दैट डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल। द मास ऑफ ए बॉडी दैट डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट ड्यू टू द अर्थ। यानी यह ग्रेविटेशनल पुल, पृथ्वी के कारण जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, उसको हम जो मास डिटरमाइन की जाती है उसको हम ग्रेविटेशनल मास के नाम से जानते हैं। और इसे हम एक फिजिकल बैलेंस से ज्ञात करते हैं, फिजिकल बैलेंस या फिर स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। जो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, G बटा R स्क्वायर। इट इज द कॉमन नोन साइन। F is the force, G is the gravitational constant, M is the mass of the earth, mg is the mass of the body, gravitational mass, R is the radius of the earth। और इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल मास जो है निकाल लेते हैं, FR स्क्वायर बाई GM। क्लियर? वेट बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज वेट? द फोर्स ऑफ द अर्थ बाय विच इट पुल ए बॉडी इज कॉल्ड द वेट। इसी को हम वेट करते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। What is the difference between the mass and the weight? Mass, it is a scalar quantity. Weight is a vector quantity. Mass always remain constant everywhere in the universe. मास नहीं बदलता है या कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस पर। मास की जो यूनिट होती है वह किलोग्राम, ग्राम में मेजर करते हैं, जबकि वेट को हम डाइन और न्यूटन में मेजर करते हैं। किसी भी बॉडी का मास, उसके बगल में कोई दूसरी बॉडी रख दी जाए तो उससे इसका मास प्रभावित नहीं होता। लेकिन यदि किसी वस्तु का, बॉडी का हम वेट ज्ञात कर रहे हैं, तो वेट के बगल में कोई दूसरा बॉडी रख दिया जाए तो इसका वेट जो है प्रभावित होता है। दूसरी चीज, मास जो होता है वह मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वेट बॉडी की जो है मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, वह इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, कभी भी, एट एनी प्लेस
इन द यूनिवर्स, कहीं भी हम लेके जाएं मास जो है कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन इट इज पॉसिबल वेट बिकम्स जीरो, लेकिन यह संभव है वेट जीरो हो जाए। कहां पर? यदि अर्थ के सेंटर पर उस बॉडी को ले जाया जाए तो वहां पर उसका वेट जो है जीरो हो सकता है। दिस इज द डिफरेंसेज बिटवीन द मास एंड द वेट। इज इट क्लियर? द नोट्स ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज PDF। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स जो है PDF के रूप में लोड कर दिया जाता है। आप इसे अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले आप उसे लोड करें, एक बार पढ़ें और फिर वीडियो देखकर वॉच करें तो क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक्स।